Fine, a very formal good morning. You must be remembering that in your previous class, I had explained you people what history is, what is meant by the term history, right? So, what was explained that the word history means his story. If we split the word, we get that it is a his story. I mean, whatever has been done there in the past, that is a history, right? So here also in this one, I mean, already I have explained you people ki that history is also divided in three parts, right? That is the ancient history, the medieval history, and the modern history. And in class 6 you will be going through the ancient history, right? So how the people they started living, how they had invented the fire, how the things you can say moved at a very good pace. I mean, how the civilized life had started. That we will be covering in your history. So your chapter says from hunting, gathering to growing food. Let me explain the heading. ये जो हेडिंग है ये बहुत ही क्लियरली आपकी द जर्नी ऑफ ह्यूमंस या जर्नी ऑफ अर्ली ह्यूमंस है उसको डिपेक्ट करती है दैट फर्स्ट द अर्ली मैन द ह्यूमंस दे वर द हंटर्स, right? They used to hunt, they used to kill the animals, and then they used to you can say eat those animals, and then they had started gathering, right? गैदरिंग मीन्स वही जानवरों को मार के फिर खाना या जो से कोई प्लांट्स होते थे, जो ऑलरेडी फ्रूट्स होते थे, राइट, वो इकट्ठे कर लेने और वो खा लेना. एंड इट वाज नॉट अ सेटल्ड लाइफ, right? It cannot be called a settled life, right? So it was a from gathering itself, as mentioned कि जो fruits होते थे वो उठा लिए, या I mean उस समय तक कुछ human beings बनाते नहीं थे. Till they were the gatherers, they were not cooking anything, they were not growing anything, right? They were just gathering, इकट्ठा करते थे जो चीजें already nature में है, right? जो चीजें ऑलरेडी नेचर में है वही वो इकट्ठा करते थे, वही खाते थे, उसी को यूज करते थे, वही पहन लेते थे, एंड सो ऑन. They used to live in the either the caves, or they were used to live in on the trees. They used to eat the raw meat, they used to eat the you can say the fruits that were available in the forest, right? So as mentioned they were not knowing how to grow the food or how to do the agriculture and so on, right? So uske baad dheere dheere human beings they had started growing the food, they had started agriculture, right? उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी. खेती करनी शुरू की तो अब वो सेटल भी होना शुरू हुए, because when you are doing the agriculture, then the people had to you can say settle at one place, they had to take care of the crops that were grown, right? तो कैसे ह्यूमन बींग्स जो थे वो पहले हंटर्स थे, गैदरर्स थे, उसके बाद दे बिकेम द ग्रोअर और दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग द फूड, राइट? सो यहाँ एक केस स्टडी की हुई है दैट तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग, and they were traveling by train, and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane, and as he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" So say 1854 में जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई थी. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि जो सबसे पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी या चली थी इंडिया में, दैट वाज फ्रॉम मुंबई टू थाने. थाने जो है वहां पर एक जगह का नाम है, दैट इज क्वाइट नियर टू मुंबई, राइट? सो वहां पे आई मीन दैट प्लेस इज आल्सो देयर इन महाराष्ट्र. सो वहां से मुंबई से थाने के लिए पहली ट्रेन चली थी 1854 में. दैट ब्रिटिशर्स हैड स्टार्टेड दैट, राइट? एनीहाउ, and that people began using buses a few decades later. Fine. So ये देखिए हैरानी की बात है कि पहले ट्रेन शुरू हुई थी, उसके बाद बसेस शुरू हुई थी.
first the trains were started, and then after that the buses were started, and it was really a thing that wonders. And so Tushar also wondered that when people could travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? राइट, ये क्वेश्चन तो हमें भी लगता है कि उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो होते नहीं थे, राइट, और इवन ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट इवन नोइंग कि हम एनिमल्स को यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्या ह्यूमन बीइंग्स जो थे जहां पर बॉर्न होते थे वहीं पे रह जाते थे? They never used to move from one place to another. Yes, this is very common question that comes in our mind कि when they could not move from one place to another, तो जहां पे पैदा होता था वहीं पे अपनी सारी लाइफ निकाल देते थे। They never used to go anywhere. But it is not like this. It is not like this. The people, early people also used to move from one place to another. But yes, they were having their own reasons. आजकल हम लोग क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? Sometimes it's for recreation, it's for entertainment, right? जब आपकी summer vacation होती है तो you want your parents to take you to some hill stations or somewhere else, right? So हम move करते हैं। कई बार होता है कोई function है, कोई friend को मिलना है, sometimes for education, शायद आप लोगों के कोई brother sisters बड़े होंगे जो 12th पास कर गए होंगे, तो they must have gone out for studies. Your parents must have come out from some other cities for their jobs, right? So we have nowadays ample of reasons to move. But अभी हमें दिक्कत नहीं है because we are having many means of transport. हम बड़े आराम से जा सकते हैं, बड़े आराम से we are you can say able to move from one place to another, right? See, all of you, please, you are requested not to put any message in the chat box, right? Good. Gitika, please take care of it. So earlier the humans, they were having their own reasons, right? And the fact to know is कि जो इंडिया है या अर्थ पे आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, they had started living say 2 million years ago. आज से 2 million is equal to how much or how many years? It is 20 lakh, right? 10 lakh is equal to 1 million, so it is 2 million, it means 20 lakh years. So उस समय हम उन्हें कहते थे hunter gatherers. Reason is because they hunted animals, they caught fish and birds. Please underline this. Please underline that they hunted wild animals, they caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. वो इतनी सारी चीजें जो थी वो से पकड़ लेते थे, इकट्ठा करते थे, उन्हें खाते थे, उनको यूज करते थे, राइट? नो डाउट, एज मेंशन कि ये बेशक फूड गैदरर्स थे, बट स्टिल दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड एज आई सेड दे यूज्ड टू हैव देयर ओन रीजंस. क्या रीजंस होते थे? वो कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उन्होंने कौन सी पार्टी करनी होती थी, उन्होंने कौन सा एंटरटेनमेंट के लिए जाना होता था, कौन सी मूव वहां पे थिएटर्स होते थे एंड ऑन, नथिंग वाज देयर. बट व्हाट रीजंस दे वर हैविंग? सी, उस समय का टाइम था कि ह्यूमन बीइंग्स को बस ये पता था हमने पेट भरना है, वी जस्ट वांट समथिंग टू ईट. कोई एजुकेशन नहीं एंड नथिंग वाज देयर. आई मीन एक सॉर्ट ऑफ एनिमल्स वाला ही हाल था जहां पर सिर्फ पेट भरना है, खाना है. फाइन. सो फर्स्ट रीजन वाज if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. अगर वो एक ही जगह पे रहते थे तो अब खाना तो खाना ही है, पेट तो भरना ही है, तो जितने भी खाने के रिसोर्सेस थे, खाने की चीजें थी, be it the fruits, be it the plants, be it the animals, तो जब वो एक ही जगह पे इतने टाइम तक रहते थे तो क्या होता था कि
ये रिसोर्सेस कम हो जाते थे, राइट। इनके खाना जो था वो कम हो गया, खाने की चीजें कम हो गई। बट ऑब्वियस वहीं बैठे बैठे खा रहे हैं तो इतनी जल्दी एनिमल्स थोड़ी और आ जाएंगे, या इतनी जल्दी प्लांट्स थोड़ी ग्रो कर लेंगे। सो दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड द फूड। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आना ही पड़ता था फूड ढूंढने के लिए, राइट। सेकेंडली, animals move from place to place, right? The animals move from place to place. अब जानवर हैं वो एक जगह तो नहीं टिक के बैठेंगे ना कि भी ह्यूमन बींग्स ने हमें खाना है तो हम थोड़ा बैठ ही जाएं उनके लिए, राइट। सो दे मूव। सो ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी क्यों मूव करते हैं? अरे भाई उन्होंने भी तो खाना खाना है ना, तो उन्होंने भी पेट भरना है, तो वो भी आगे किसी और छोटे एनिमल्स को हंट करने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए, दे यूज टू सर्च फॉर देम, राइट। और यू कैन से सपोज अगर वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, डियर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको बहुत ज्यादा ग्रास चाहिए, लीव्स चाहिए, अब एक ही जगह रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो दे यूज टू मूव, राइट। अब एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो जो लोग एनिमल्स को खाएंगे वो भी तो उन एनिमल्स के साथ मूव करेंगे, उनको मारने के लिए कहीं पे जाएंगे। So this was the second reason that why the people moved, right? Third reason, बड़े interesting reasons हैं ये। Third, plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. इसमें मैं थोड़ा सा एग्जांपल ही दे देती हूँ से कि जो मैंगो है, राइट, वी आल्सो नो कि मैंगो समर्स में आता है, एप्पल्स विंटर्स में आते हैं। खैर आजकल तो इन एवरी सीजन यू कैन गेट ऑल द फ्रूट्स, बट एक्चुअली जो ग्रोइंग सीजन होता है हर फ्रूट का अलग अलग होता है, हर क्रॉप का अलग अलग होता है। अगर क्रॉप्स की बात करें तो जो वीट है, हम वीट जो है कब काटते हैं? अप्रैल में, बैसाखी है ना कल, तो अब वीट कटिंग होगी, राइट। और उसके बाद राइस जो है, उसके बाद राइस लगाया जाता है। राइस नॉर्मली इज हार्वेस्टेड से इन सितंबर और अक्टूबर, तो सीजन अलग अलग है ना। तो ये जो प्लांट्स और ट्रीज जो हैं उनमें फ्रूट्स जो आता है वो अलग अलग सीजन में आता है। अब मैंगो जो है वो समर्स में लगेगा ट्रीज में, जो एप्पल है वो विंटर्स में लगेगा, राइट। या ऐसे कि जैसे वाटरमेलन्स हैं ये समर्स में आते हैं, ग्रेप्स या ऑरेंज जो है वो ज्यादा विंटर्स में आते हैं, फाइन। तो लोग जो थे उन्हें भी दे हैड टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन, क्योंकि कोई फ्रूट किसी सीजन में उग रहा है, इन्होंने खा लिया, अब सीजन चेंज हो गया तो यहाँ पे वो फ्रूट नहीं होगा, देन दे हैड टू गो टू सम अदर प्लेस वेयर द सीजनल फ्रूट हैड ग्रोन, राइट। Then comes the fourth, people, plants and animals need water to survive. हमें पानी भी चाहिए, तो जहां पर पानी होगा वहां चले जाएंगे। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर ड्राई सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो वहां पर क्या होगा कि जो पानी के सोर्सेज हैं वो सूख जाते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर जो है हमारे सूख जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि द पीपल हैड टू मूव टू द प्लेसेस वेयर द वाटर वाज अवेलेबल, राइट। हम लोग वाटर कहाँ से पीते हैं? फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स और स्ट्रीम्स। उनमें से कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो पेरिनियल होती हैं, पेरिनियल मींस दे आर हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ नॉन पेरिनियल होती हैं, सम आर नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल मींस कि वो गर्मियों में ड्राई हो जाती हैं। उन रिवर्स को हम क्या कहते हैं? सीजनल। एक होती है पेरिनियल रिवर्स, एक होती है सीजनल रिवर्स, राइट। सो पेरिनियल रिवर्स जो है जिनमें सारा साल पानी होता है, और जो सीजनल रिवर्स मींस दे गेट ड्राइड अप इन summers, right? So people living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons. जो ड्राई सीजन्स होते हैं, जब बारिश नहीं होती है, से समर्स एंड विंटर्स, राइट, तो लोगों को पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है।
और क्वाइट पॉसिबल कि ये जो अर्ली ह्यूमंस होते थे शायद वो भी अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हो, राइट? दे मे हैव ट्रैवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू। ये आपका फिफ्थ रीजन बन सकता है कि दे मस्ट हैव ट्रैवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स टू, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, दैट दे आर द सोशल एनिमल्स। यू नो, एनिमल्स जो होते हैं ना, जानवर जिसे हम कहते हैं, वो अकेले रह लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं रह सकते हैं। Human beings needs a company, they needs a friends, they needs a relatives, right? So इसीलिए जो humans होते हैं उन्हें उनकी बाकी सारी जो चीजें होती हैं, like that is very similar to animals, but the thing is that we like to socialize. You know, socialize का मतलब क्या होता है, हम जब लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, हम कंपनी में रहते हैं, हम लोगों की कंपनी में रहते हैं, so that is socializing, right? And that's the reason that the human beings, they are called as the social animals. हम लोग एनिमल कैटेगरी में आते हैं, राइट? सो बस डिफरेंस इतना है कि शायद जो जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका ब्रेन शार्प होता है एंड दे हैड यूज्ड देयर ब्रेन टू you can say improve their lifestyles, to invent the things and so on, right? So these are the reasons why the humans, they used to move from one place to another, right? अब ये सब तो हमने देख लिया कि वो मूव करते थे, हमें कैसे पता भाई? हाउ डू वी नो कि वो घूमते रहते थे? हाउ डू वी नो अबाउट कि दे वर द हंटर्स? हाउ डू वी नो दे हैड स्टार्टेड ग्रोइंग द फूड? हमें कैसे पता चलता है, राइट? देयर आर मेनी वेज। सी, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज कम होते हैं। Why? Because the humans that time did not know how to write the books. तो उन्होंने कभी बुक्स नहीं लिखी, तो हमें नहीं पता कि how their life would have been, right? So हमें क्या करना पड़ता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है that we call the archaeologist. कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही क्या होता है, जमीन खोदनी है, वहां से कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस निकालने हैं एंड देन टू फ्रेम वन स्टोरी कि ऐसा हुआ होगा, और फिर हमारे सामने फैक्ट्स डालने। और ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है दैट इज बेस्ड ऑन द एविडेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम digging the earth plus some assumption of the historians also. जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं ना उसको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। तो कुछ उनकी स्टोरीज, उन्होंने कुछ स्टोरीज बनाई होती हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सामान ढूंढा होता है जमीन के अंदर से उनको मिलाकर एक स्टोरी बना दी जाती है जो हमें सुनाई जाती है। बट ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में है, जब ह्यूमन बीइंग्स को लिखना पढ़ना नहीं आता था। बट जब ह्यूमन बीइंग्स को लिखना पढ़ना आना शुरू हो गया तो दे हैड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर लाइव्स। सो वो जो राइटिंग्स थी that had been preserved and that had been a very good source of our knowledge, right? So anyhow, there, as I said, there are many ways to know about how these people lived. So archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. हमारे archaeologists को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे थोड़ा सा assume हो पा रहा है कि hunter gatherers क्या करते थे। क्या करते थे? They made and used tools of stone, wood and bone. लकड़ी के, पत्थर के और एनिमल्स की बोन्स के टूल्स बनाते थे जिससे वो एनिमल्स को मारते थे। एनिमल्स को मारते क्यों थे? खाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए? अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए भी they used to kill the animals, right? Some of these tools are used to cut meat and bone, scrap the bark from trees and hides,
ये सब यूजेस हैं स्टोन टूल्स के, कि मीट को काटना है, बोन्स को काटना है, या पेड़ छिलना है। पेड़ क्यों छिलना है? दे हैड टू कवर देयर बॉडीज। कोई समय कोई बुटीक वाले थोड़ी होते थे, कोई टेलर थोड़ी होते थे, कोई कपड़ा थोड़े इन्वेंट हुआ था। सो दे हैड टू कवर देयर बॉडीज। सो क्या करते थे, या तो एनिमल की स्किन जिसे हाइड्स कहते हैं, या ट्रीज जो है पेड़ के जो बाहर का जैसे ट्रंक कहते हैं, ट्रंक या बाग जो है उसका ऊपर का पार्ट होता है, उस बाग को वो छील लेते थे और उससे अपनी बॉडीज कवर कर लेते थे। स्टोन टूल्स का एक और फायदा क्या होता था? चॉपिंग द फ्रूट्स, फ्रूट्स काटने, या जो खाने की चीजें जमीन के अंदर से निकालनी है उस रूट्स को काट के भी निकालना। सो ये सारे काम जो होते थे, दे यूज्ड टू डू विद देयर टूल्स। Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears and arrows for hunting. तो see, human beings का दिमाग शुरू से ही बहुत तेज रहा है, right? So they knew, कई बार क्या होता है कि हो सकता है जब उन्होंने स्टोन टूल बनाया और उसको यूज किया, अब अगर हम अभी भी सोचें कोई हम बड़ा सा पत्थर ले रहे हैं और उसको जमीन पे मारते रहेंगे तो हमारे खुद के हाथ दुखने लग जाएंगे, छिल जाएंगे हमारे हाथ शायद, राइट? सो उन्होंने भी क्या किया, दे हैड अटैच्ड हैंडल्स। यही अगर कोई हैंडल लगा होगा चीज से तो हम लोग वी विल नॉट बी सो बॉदर्ड, वी विल नॉट बी हर्ट रेदर। So they had also done this thing, they had attached the handle to these stone tools, right? उन्होंने arrows बनानी शुरू कर दी, hunting के बड़े बड़े ways उन्होंने ढूंढने शुरू कर दिए। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. जो लकड़ी थी उससे tools भी बनाए गए and hut भी बनाई जाती थी and further tools were also used. You can see here in the picture also, right? कैसे उन्होंने ये बनाए। Stone tools may have also been used for digging the ground to collect edible roots. अभी देखो कि जमीन को कैसे फर्स्ट फिगर में वो खोद रहे हैं, सो दैट कि इस प्लांट की जो रूट्स हैं जिसे वो खा सकते हैं वो उसके लिए यूज कर रहे हैं। सेकेंड आप देख सकते हैं स्टिचिंग द क्लॉथ्स, एनिमल के स्किन से कपड़ा स्टिच करके दे यूज टू हैव देयर क्लॉथ्स, राइट? सो रेस्ट of the things we will cover tomorrow.